Assalamualaikum and good morning students. Let's begin the maths class. Open your books page number 11. Today we will start our next topic, that is multiplication. We have learned the method of multiplication of numbers in previous classes. Now we will learn to multiply 5-digit numbers with 3-digit numbers. Each part of multiplication sum has special name in maths. So firstly the number on the top is called multiplicand and the number on its bottom is called multiplier, and the answer we get after multiplying both multiplicand and multiplier is called product. So these definitions are given. Multiplicand is a number or quantity to be multiplied. The multiplier is a number or quantity by which the multiplicand is to be multiplied. And the product is simply the result of multiplication, as I told you before these definitions. So we will start our multiplication from extreme right side, starting from units. We will start multiplication from here. We will multiply this digit with all the digits above it. So जब हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले 3 के साथ, we get 3 into 6 18, then 8 is written here and 1 is carried above, so a small carry is taken, that is 1. Then 4 into 6 we have 24 plus 1 we have 25, so 5 is placed here and 2 is carried above. Then again 2 into 6 we have 12, 12 plus 2 we have 14, तो हमने यहाँ लिख दिया 14. उसके बाद अब हमारे पास हमने यूनिट्स प्लेस से अपनी मल्टीप्लिकेशन ख़त्म कर ली. नाउ we will move towards the tens place, that is 4. So as we have completed multiplication at our units place, we will place a 0, or you can place a cross over here in the units place under this answer before where we have multiplied with units place. So अब हमने यहाँ पे जो पहले आंसर निकल आया उसके नीचे यूनिट्स प्लेस पे एक क्रॉस पुट कर देना है या फिर 0 पुट कर देना है, ठीक है, बिकॉज हमारी यूनिट्स प्लेस पे अब मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गई. अब हमने टेंस प्लेस से अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है ऊपर वाले सभी डिजिट्स के साथ, और अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है हमने यूनिट्स प्लेस से. सो 4 into 3 वी हैव 12, 2 यहाँ लिखा, 1 अगेन यहाँ पे कैरी ले लिया, ठीक है. सो ये कैरी पहले वाला था, ये बाद में लिया. उसके बाद 4 into 4 we have 16, 16 plus 1 जो 1 कैरी लिया था 1, that is 17, 16 plus 1 equals to 17, तो 7 यहाँ पुट किया, 1 again कैरी ले लिया. Then 2 into 4 we have 8, 8 plus 1 we have 9. Then we will add all these, both these numbers that we got by multiplying with 6 and multiplying with 4. Starting from units side अपने अपनी एडिशन स्टार्ट करनी है. 8 plus 0 we have 8, 5 plus 2 we have 7, 7 plus 4 we have 11, 1 here and then small 1 is carried again. So 9 plus 1 we have 11, and this is the product of both the multiplicand and multiplier. Moving on to the page number 15, exercise 1C, question number 5. I will solve question number 5 for you, and question number 4 and 6 is your homework for today. So question number 5 is write these vertically and multiply. So we will write these numbers vertically and then we will multiply. So I have written the numbers vertically, जैसे हम लोग पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिखते थे vertically numbers को, वैसे ही मैंने लिख लिया है, ठीक है. अब हम लोग अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द यूनिट्स साइड. तो हमने यूनिट्स में हमारे पास यहाँ 9 है. अब इस 9 को हम ऊपर वाले हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अब हमारे पास ये है मल्टीप्लिकेंड एंड दिस इज़ द मल्टीप्लायर. सो वी विल स्टार्ट आवर मल्टीप्लिकेशन by multiplying this digit at multiplier's place with all the digits in the multiplicand, ठीक है. So 2 multiplied by 9 we have 18,
8 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी ले लेंगे, बिकॉज हमने यूनिट्स प्लेस को यहाँ पे पुट करना है, और जो 18 होता है उसमें 8 आता है यूनिट्स प्लेस पे और 1 आता है हमारे पास टेंस प्लेस पे। हमने हमेशा टेंस प्लेस वाले डिजिट को ऊपर कैरी कर लेना है, ठीक है। अब हम इस 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 6 वी हैव 54। 54 आ गया। 54 में अब जो हमने ऊपर कैरी लिया उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आया 55। अगेन हमने यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट को यहाँ लिखा और टेंस प्लेस को कैरी कर लिया। देन 9 इंटू 5 वी हैव 45। 45 प्लस 5 वी हैव 50। सो हम लोग यहाँ पे 5 कैरी ले लेंगे। Again 2 into 9 we have 18. 18 plus 5 we have 23. तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और 2 को ले लेंगे कैरी, ठीक है। अगेन देखें, अब यहाँ 9 इंटू 7 आएगा। 9 इंटू 7 we have 63. 63 plus 2 we have 65. सो ये सारा आपने टेबल्स अगर आपको अच्छे से याद हुए हैं ना तो आप लोग इजीली ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हमारी यूनिट्स प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। हमने यहाँ पे लिखा क्रॉस, या ज़ीरो पुट करें या क्रॉस पुट करें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अब हम लोग इस 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे अपने सारे ऊपर वाले डिजिट्स की। स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स साइड हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 इंटू 6 वी हैव 12। सो 2 पुट किया, 1 कैरी ले लिया। देन 6 इंटू 6 वी हैव 36। 36 प्लस 1 वी हैव 37। 7 यहाँ लिखेंगे। 3 अगेन कैरी ले लेंगे। 5 इंटू 6 वी हैव 30। 30 प्लस 3 वी हैव 33। 3 अगेन कैरी ले लिया। देन 2 इंटू 6 वी हैव 2 इंटू 6 वी हैव 12। 12 प्लस 3 वी हैव 15। सो हमने 1 अगेन कैरी ले लिया। देन 7 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 42। 42 प्लस 1 वी हैव 43। सो ये आ गया हमारे पास 6 के साथ जब हमने प्रोडक्ट ली इस पूरे की, ठीक है। अब हमारे पास यूनिट्स प्लेस पे भी हमने कर ली मल्टीप्लिकेशन और टेंस से भी कर ली। सो हमने यहाँ पे भी क्रॉस पुट किया, यहाँ पे भी, ठीक है। अब हमारी हंड्रेड्स प्लेस की रह गई है मल्टीप्लिकेशन इन सभी डिजिट्स के साथ। सो हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी के साथ तो हमारे पास आएगा 1 इंटू 2 वी हैव 2। 1 इंटू 6 वी हैव 6। 1 इंटू 5 वी हैव 5। 1 इंटू 2 वी हैव 2। 1 into 7 we have 7. Now we will add all these 3 numbers. So starting addition from unit size 8 as it is आ जाएगा because 8 के नीचे और कोई digits नहीं है। So 5 plus 2 we have 7. 7 plus 2 we have 9. 3 plus 3 we have 6. 6 plus 6 we have 12. 2 लिखेंगे, 1 कैरी ले लेंगे। 5 plus 5 we have 15 plus 1 we have 16. So 6 plus 3 equals to 9. 9 plus 2 we have 11. 11 plus 1 we have 12. So यहाँ पर आ गए अब हम 1 plus 4 we have 5. 5 plus 7 we have 12. So this is the product of our multiplication. This is product. Similarly, I have solved other questions for you, other parts for you. B part में देखें क्या किया उसने। सबसे पहले ऊपर हमने एक मल्टीप्लिकेंड लिखा और नीचे लिखा मल्टीप्लाई, ठीक है। सो यहाँ पर हमने जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को, यूनिट प्लेस में ज़ीरो है, सो ज़ीरो से जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है। अब ये ज़ीरो ख़त्म, इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सो यहाँ क्रॉस आ गए। अब नेक्स्ट ज़ीरो से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अगेन ज़ीरोज़ आ गए हमारे पास, ठीक है। सो अगेन हमने ज़ीरोज़ लिख दिए। उसके बाद ये प्लेस भी ख़त्म, यहाँ से भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो हमने 2 क्रॉसेस पुट कर दिए। उसके बाद हमने 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 6 आया। 2 इंटू 9 वी हैव 18, 1 कैरिड। दैन 2 इंटू 0 वी हैव 0। 0 प्लस 1 वी हैव 1 हेयर। Then 2 into 0 we have 0. Then 2 into 8 we have 16. So when we add
these numbers. 0 as it is आ गया, 0 plus 0 equals to 0, 6 plus 0 equals to 6, 8 plus 0 equals to 8, 1 plus 0 equals to 1 and so on. ठीक है. सिमिलरली जब हम लोग सी पार्ट में लिखें 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट साइड 4 into 1 we have 4, 4 into 8 we have 32, 2 यहाँ लिखेंगे, 3 कैरी कर लिया. ठीक है. अब जो हम लोग कैरीज ले रहे हैं, ठीक है, अब जब मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमें यहाँ पर कैरीज लेने हैं. ठीक है. जब हम 2 के साथ करेंगे तो उसके ऊपर लिखेंगे एंड देन 6 के साथ तो वो नेक्स्ट. ठीक है. ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें कि जो फर्स्ट वाले हैं कैरीज वो जो हमने फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया तब लिए थे, जो सेकंड है वो सेकंड वाले डिजिट के साथ जब मल्टीप्लाई किया तब लिए, एंड थर्ड वाले जब थर्ड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया तो तब लिए थे. ठीक है. सो ये कंपैरिजन के लिए मैंने इस तरह से लिखे हैं. तो ये अब हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से. 4 into 9 we have 36, 36 plus 3 we have 39 again. 9 यहाँ लिखा, 3 कैरी ले लिया. then 0 into 4 we have 0, 0 plus 3 we have 3. then 4 into 4 we have 16. देन अब यहाँ हमने क्रॉस पुट कर दिया बिकॉज यूनिट्स प्लेस पे हमारी मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गई. अब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि टेंस प्लेस पे है. टेंस प्लेस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सभी डिजिट्स के साथ तो हमारे पास ये नंबर आता है. ठीक है. सिमिलरली जब हमने 2 के साथ कर ली मल्टीप्लिकेशन ख़त्म तो हमारे पास ये प्लेस ख़त्म हो गया. हमने यहाँ पे 2 क्रॉसेस पुट कर दिए बिकॉज यूनिट्स प्लेस पे भी हमने अपनी मल्टीप्लिकेशन कर ली है और टेंस पे भी कर लिया. हंड्रेड्स प्लेस पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा. और लास्ट पे हमने इनको यूनिट साइड से अपनी एडिशन स्टार्ट करनी है और यहाँ से हम लोग इनको ऐड करते जाएंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. मूविंग ऑन टू द डी पार्ट. डी पार्ट में भी हमने ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. यूनिट साइड से अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे. 1 into 3 we have 3, then 3 into 7 we have 21, 1 लिखा, 2 कैरी ले लिया. then 3 into 5 we have 15, 15 plus 2 we have 17, 7 यहाँ लिखा, 1 कैरी ले लिया. then 3 into 4 we have 12, 12 plus 1 we have 13, 3 यहाँ लिखा, 1 नेक्स्ट कैरी ले लिया. then 3 into 3 we have 9, 9 plus 1 we have 10, 10 लिख दिया. ठीक है. then क्रॉस पुट किया क्योंकि यूनिट्स प्लेस पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली. अब हमने 4 से जब मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास आया ये नंबर. ठीक है. देन हमने ये टेंस और यूनिट्स प्लेस पे जब मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है तो हमने हंड्रेड्स प्लेस की तरफ मूव करना है. ठीक है. सो हंड्रेड्स प्लेस पे 8 था और यहाँ पे हमने 2 क्रॉसेस पुट कर दिए क्योंकि हमने यूनिट्स और टेंस प्लेस पे अपनी मल्टीप्लिकेशन कर ली है. ठीक है. सो अब हम लोग 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 8 into 1 we have 8, 8 into 7 we have 56, 6 यहाँ लिखा, 5 कैरी ले लिया. then 8 into 5 we have 40, 40 plus 5 we have 45. तो जब 5 यहाँ पुट किया 4 कैरी ले लिया. then 4 into 8 we have 4 into 8 we have 32. then 32 में 4 ऐड किया we have 36, 6 यहाँ लिखा, 3 कैरी ले लिया. then 3 into 8 we have 24, 24 plus 3 we have 27 वो लिख दिया. अब हमने इन सभी को ऐड कर लेना है नंबर्स को and we get this answer. Now question number 4 and 6 is your homework. You have to solve on your notebooks. आज का क्लास वर्क आपने क्लास CW लिख कर अपना क्लास वर्क करना है और होमवर्क के ऊपर आपने मेंशन करना है कि आपका होमवर्क है और आज की डेट एंड टॉपिक भी मेंशन करेंगे आप.